and welcome to the channel Krishi Bodh, and this is the last video of series श्रुति बुक। हमने सारे चैप्टर को पढ़ लिया है। अब चैप्टर लास्ट जो 2 चैप्टर है बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं एक वीडियो में मर्ज कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर मैनेजमेंट एंड देन एंटरप्रेन्योर। सो Chapter 8 Management is derived from French word manage, meaning housekeeping, the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in group efficiently accomplish selected aims. Management is function of planning, organizing, staffing, leading, controlling. The Siamese twins of manage is planning and controlling. The aim of all manager is same, to create surplus. Managing is concerned with productivity, which implies effectiveness and efficiency. Output-input ratio within a time period with due consideration for quality is productivity. The achievement of objective is effectiveness. The achievement of end with least amount of resources is efficiency. Manage as a practice is art. The organized knowledge underlying the practice is science. According to Henry Fayol, 3 बेसिक स्किल होता है मैनेजमेंट में: टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल। एबिलिटी टू यूज़ द प्रोसीजर, टेक्निक्स एंड नॉलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो टेक्निकल स्किल होगा। और एट सुपरवाइजरी लेवल स्किल रिक्वायर्ड जो होता है वो टेक्निकल स्किल होता है। ह्यूमन स्किल, एबिलिटी टू वर्क विथ, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल एज इंडिविजुअल और इन ग्रुप फॉर फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विथ सबऑर्डिनेट स्किल रिक्वायर्ड human skill. Ability to coordinate and integrate all of organization interest and activity, conceptual skill. At top management level, skill especially valuable, conceptual and human skill. At middle level, technical skill decrease, human skill still essential, conceptual skill gain in importance. At lower level, technical skill necessary. POSTCORP as management function was developed by L. Gulick. The acronym क्या है इसका? The activity of an administration. ठीक है। So theories of management, तो हम यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी पे आते हैं। साइंटिफिक अप्रोच, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। कंसर्न होता है विथ रेजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू greater efficiency in production and increased pay for worker by applying the scientific method. Frank Gilbert, human implication of scientist management focused important or designing method to improve, जो कि एफिशिएंसी वर्कर का इंक्रीज करते हैं। अब लिलन गिलबर्ट ये वर्क करते हैं ऑन टास्क एंड बोनस सिस्टम टू मोटिवेट द वर्कर। हेनरी ग्नैट फोकस करते हैं 5 मैनेजरियल एक्टिविटी पे। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये क्या करता है? लीड करता है टू मॉडर्न मैनेजमेंट फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। सो हेनरी फ्योल ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है और divided the industry activity into 6 group: technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. Give 14 principle of management. Administrative approach, Max Weber, theory of bureaucratic management, stress the need for strictly defined hierarchy governed by clearly defined regulation line of authority. Mary Parker Follett called management the art of giving things done through people. अब है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में मैक्स वेबर था, मैरी पार्कर फॉलेट था, अब है एल्टन मैयो। तो फेमस स्टडी एट हॉथरॉन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप ऑफ वर्क ग्रुप ऑन परफॉर्मेंस, अब्राहम मैस्लो। तो इसने थ्योरी दिया था पीपल का, वेयर motivated by needs and hierarchical needs by physiological safety, belongingness, estimated self-acquisition. अब आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो emphasize over helping worker perform their task more efficiently. The administrative management theory emphasize over coordinating the internal activity of organization. The bureaucratic management theory dealt with ideal organization which operate on a rational basis. Approach to management studies experience through case, identifies success and failure. Empirical approach look at management as a purely logical process.
expressed in mathematical symbol and relationships, mathematical और management science approach जहाँ पे organization as a unified purposeful system composed of interrelated part, तो system approach। और approach जो emphasize करता है कॉन्टिजेंसी, तो कॉन्टिजेंसी अप्रोच को कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। और मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ट कंट्रीब्यूट्स टू अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल माइट वेरी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, तो सिचुएशन अप्रोच फोकस करते हैं ऑन मेकिंग ऑफ डिसीजन पर्सन्स एंड ग्रुप मेकिंग डिसीजन ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो डिसीजन अप्रोच कंसर्न होते हैं विथ फंडामेंटल री थिंकिंग प्रोसेस एनालिसिस रेडियल रीडिज़ाइन एंड ड्रामेटिक रिजल्ट्स, तो री इंजीनियरिंग अप्रोच। और एम्फेसाइज करते हैं बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप बेस्ड ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशियो साइकोलॉजी, तो ग्रुप बिहेवियर अप्रोच फोकस करते हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर ह्यूमन रिलेशंस लीडरशिप एंड मोटिवेशन, तो इंटरपर्सनल बिहेवियर अप्रोच फोकस करते हैं ऑन प्रोवाइडिंग डिपेंडेबल सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर फिट फॉर यूज़ जुड़न एज वेल एज कंफॉर्मिंग टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्रूज बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच TQM अप्रोच इंपॉर्टेंट। तो ड्रॉ करते हैं टुगेदर कंसेप्ट प्रिंसिपल टेक्निक एंड नॉलेज फ्रॉम अदर फील्ड एंड मैनेजरियल अप्रोच। द अटेम्प्ट इज टू डेवलप साइंस एंड थ्योरी विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस और ऑपरेशनल अप्रोच। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फायोल ने दिया था। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है कि लेबर का डिवीजन करो, दूसरा है अथॉरिटी, तीसरा है कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, चौथा है कि यूनिट ऑफ कमांड होना चाहिए, पांचवा है यूनिट ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, छठा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, हायरार्की और ऑर्डर, इक्विटी और स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ और इनिशिएशन एंड टीम स्पिरिट। अब धीरे धीरे देखा जाए तो अगर तुम इमेजिन करो कि एक लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है और वहाँ पे अथॉरिटी है, डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, यूनिट ऑफ कमांड बनाया, हर यूनिट ऑफ कमांड को यूनिट ऑफ डायरेक्शन मिल रहा है, अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी वहाँ देखा जा रहा है, अब रिम्यूनरेशन हो रहा है और सेंट्रलाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, वहाँ पे हायरार्की बन रही है कि ये ज़्यादा अच्छा काम करता है स्किल के बेसिस पे, ह्यूमन रिलेशंस के बेसिस पे, और उस हिसाब से ऑर्डर मिल रहा है। अब वहाँ पे इक्विटी भी मिल रहा है सबको और इसकी वजह से स्टेबिलिटी है स्टाफ में, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो लोग और उनमें टीम स्पिरिट है, मतलब मिल के काम करने का एक जुनून है। अब पावर वेस्टेड इन एन इंडिविजुअल इज अथॉरिटी इज राइट टू एक्ट, पावर एंड पोजीशन टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन मेकिंग डिसीजन अफेक्टिंग अदर अथॉरिटी। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद अथॉरिटी, द एबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंस टू डू समथिंग इज अथॉरिटी। अथॉरिटी के टाइप क्या होते हैं? तो लाइन, स्टाफ, फंक्शनल अथॉरिटी, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, लाइन अथॉरिटी, इंडिविजुअल और ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस टू लाइन मैनेजर्स, staff authority, the right which is delegated to an individual or department to control a specific processes, practices, policy and other matter relating to activity undertaken by people and other department, functional authority. Employee should receive order from one and only one superior, unity of command. Line of authority from ultimate management position is an enterprise to every subordinate position is scalar principle. Concept of unity of command is complementary to principle of scalar chain. Compensation to work done should be fair with employee and employer's remuneration. Decreasing the role of subordination in decision making, centralization. Line of authority, hierarchy. People and material should be at right place in right direction, order. Managers should be friendly and fair to subordinate, equity principle. Split the corps means in union there is strength. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? तो हेनरी फेयोल ने। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग और सेलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लानिंग। सिस्टम अप्रोच टू प्लान कंसिस्ट ऑफ 4 phases:
objective, policy, plan and procedure. Expression of end toward which our efforts are directed, objectives. General statement or understanding that guide or channel thinking in decision making, policy. The type of plan are strategic, intermediate range, short range plan. A plan which determine the major objective of plan confined to objective and policy of organization is strategic plan. Plan which are framed to carry out the coordination and function of organization with detailed document usually framed for 5-year duration, intermediate range plan. और प्लान जहाँ एक्चुअल वर्क आर वेरी डिटेल्ड एंड यूजुअली 1 ईयर का होता है, शॉर्ट रेंज प्लान. सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड रूल्स फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन प्लान डेवलपमेंट इन इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट रेंज प्लान इज प्रोसीजर. Establishing an international structure of role for people to fill in organization is organizing. The process of selecting, maintaining and developing personnel in position to fulfill organizational objective is staffing. Activity of staffing include recruitment, promotion, separation, influencing people so that they will contribute to organizational and group goals, leading, measuring and correcting individual and organizational performance to ensure event conform to plan is controlling. अब है organization. The social unit or human grouping deliberately constructed to seek a specific goal is organization. A formal organization is bureaucratic in nature and network of geographically distinct employees who are linked by electronic communication is virtual organization. Two basic approach in organizational changes: authoritative and participatory approach. Approach in which unequal distribution of power and decision about change are made by centralized power position and other being required to obey the decision. Authoritative approach जहाँ पे वाइड शेयरिंग ऑफ पावर एंड डिसीजन होता है अबाउट चेंज एंड मेड इन कंसल्टेशन. तो दोज अफेक्टेड बाय चेंज विथ दोज जो अफेक्ट होंगे चेंज से. तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच. टर्मिनोलॉजी. Decision making. Selection of course of action from among alternatives is decision making. The core of planning is decision making. Ability to make good and prompt decision is known as social insight. The number of people that can be supervised, span of control or span of management. Vesting of decision making power in subordinate by superior is delegation. Conferring of specific authority by higher authority is delegation. A small group of knowledgeable person to whom some matter is referred to mainly for detailed examination and decision committee. Establishing harmonious relationship between effort of individuals and group for accomplishment of enterprise objective is coordination. An expression of discontent or dissatisfaction with any aspect of organization is grievance handling. Statement of expected result expressed in numerical terms, budget. Concept of budgeting as recommended by administrative reforms commission is performance budgeting. Official examination of record is audit. Whole is greater than its part, synergy. Determination of big long-term objective of an enterprise and then adopting of course of action, allocation of resource necessary to achieve this goal is strategy. Or set of activity an individual has to perform by occupying a given role, given position, तो उसको रोल कहते हैं. अब है कि grouping of activity into unit of administration, departmentation. The ability of individual or group to induce or influence the belief or action of other person or group. Power. Discharging of activity according to spirit of compound accountability. Planning for possible future environment which are not expected to occur but which may occur is contingency planning. Leadership theory, art or process of influencing people so that they will strive and willingly and enthusiastically toward achievement of group goal. Leadership based on assumption that certain people are born leader whereas other cannot take up roles of leadership. Traditional and genetic theory. The individual which has something of supernatural gift which make him leader, supernatural origin power. Two people
may have great deal in common, but at the same time they may have striking margin or difference of uniqueness. Marginal uniqueness and magnetism theory. Leadership is inherent rather acquired. Great man theory. A person of normal mental and physical ability, by deliberate concentration of his energy, may attain a superior level of achievement and become a leader. Focalization of psych energy. Leadership is a function of trait or characteristics that can be acquired chiefly through education, experience, training, and age. Modified or trait theory. People become leader not only because of their personality attributes but also because of various situation factors, interaction between leaders and group member. तो contingency theory मतलब कि उनके attributes ही नहीं, उनके situation factor, interaction वगैरह भी यहाँ involve है. अब एक कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप फील्डर ने दिया था. Many function of leader is to classify and set goal with subordinates, help them find the best path for achieving the goal and remove obstacle. Path goal theory. इसको किसने दिया था? रॉबर्ट हाउस ने. सक्सेसफुल लीडरशिप बेस्ड ऑन डिफाइनेबल लर्नेबल बिहेवियर. तो बिहेवियर थ्योरी ऑफ लीडरशिप. People define role for themselves and other. Role theory of leadership. People are more committed to action in decision making. Participative leadership. Leadership have low concern for people and uses treat and fear based method to achieve confirmation. Exploitative authoritative leadership. Identify what need to be done to achieve goal, include clarifying role and task, rewarding performance and providing the social need of followers. Transactional leadership. Transactional leadership was given by BM. Transactional articulate a vision, inspire and motivate follower and create a climate favorable for organizational change. Transformational leaders. Motivation toward a particular thing means movement or motion. An inner state that energizes activities or moves and direct human behavior toward goal. तो एक मोटिवेशन होता है. नीड सेटिस्फाइंग एंड गोल सीकिंग बिहेवियर भी मोटिवेशन होता है. और दो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. अगर मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आए, ओन सेल्फ से आए, तो इंट्रिंसिक है. और मोटिवेशन अगर आर्टिफिशियली इंड्यूस हुआ, जैसे कोई अवार्ड देख लिए, कोई प्राइज़ देख लिए, कोई सर्टिफिकेट देख लिए, कोई वीडियो ही देख लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ. अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. तो हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने. The human need in form of hierarchy of 5 need ranging from most basic psychological need to highest need for self-actualization. The hierarchy of need theory. Once need met, it lost its power to motivate behavior happens in hierarchy of need theory. Physiological need, food, water, warmth, shelter, sleep. Security and safety need, job and property. Affiliation or belongingness need, group membership. Estimate need, power, prestige, status, self-confidence. Self-actualization, meditation, nirvana. ERG theory. तो क्लैटन एल्डरफर्ड ने दिया था. The theory stressed that when higher need are frustrated, lower need will return even though they are already satisfied. ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हायर नीड्स है आर फ्रस्ट्रेटेड, तो लोअर नीड जो होगा वो आ जाएगा, वापस आ जाएगा. नहीं हो पा रहा है तो इवन दो दे आर रियली सेटिस्फाइड. जब तुम्हारे बड़े नीड्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे छोटे नीड्स तुम पूरा करना चाहोगे इवन दो उसमें तुम सेटिस्फाइड हो. और पीपल आर मोटिवेटेड बाय एक्सट्रिंसिक नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड्स. तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन काम करता है ERG थ्योरी में. यहाँ पे ERG जो है तो हम सोच रहे होंगे क्या होगा इसका फुल फॉर्म. तो E से होगा एग्जिस्टेंस नीड, मैस्लो का फंडामेंटल नीड, रिलेटेडनेस नीड, नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशन और ग्रोथ नीड, नीड फॉर पर्सनल क्रिएटिविटी. अब ERG थ्योरी मैस्लो थ्योरी से डिफरेंट है. कैसे? यहाँ पीपल मूव अप एंड डाउन. हिरार्की ऑफ नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम सिचुएशन. यहाँ पे टाइम और सिचुएशन डिसाइड करता है कि वो हिरार्की में अप है या डाउन है. और हाइजीन 2 फैक्टर थ्योरी, फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग. Abhi, people have 2 different category of need in work situation and these are essentially independent of each other, affect behavior in different way. तो hygiene 2 factor theory.
और हाइजीन फैक्टर किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हाइजीन फैक्टर इंक्लूड करता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, मनी स्टेटस और सिक्योरिटी। मोटिवेशन रिलेटेड टू जॉब इटसेल्फ। और मोटिवेशन क्या इंक्लूड करता है, किसी तरह का अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट रिकॉग्निशन, चैलेंजिंग वर्क, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Reinforcement theory was given by B.F. Skinner. How the consequences of past behavior affect future action in cyclic learning. Reinforcement theory. The cyclic learning process include stimulus, response, consequence, future response. If the consequence is positive, then individual in future tend to have similar response. The human nature inclination to set and strive for goal is useful only if the individual both understand and accept particular goal. Goal setting theory. और इसको दिया किसने था, एडविन लॉकी ने. The people choose how to behave from among two alternative course of action based on their expectation of what there is to pass from each action. एक्सपेक्टेशन थ्योरी. एक्सपेक्टेशन थ्योरी किसने दिया था, विक्टर एच ब्लूम ने. इक्विटी थ्योरी किसने दिया था, जे स्टैकी एडम्स ने. अब है कि इक्विटी थ्योरी क्या है, तो अजम्पशन दैट अ मेजर फैक्टर इन जॉब मोटिवेशन इज़ द इंडिविजुअल इवेल्युएशन ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस ऑफ रिवॉर्ड रिसीव. मतलब कि सबसे जो जॉब का मोटिवेशन क्या है कि एक जो इंसान है वो इवेलुएट करे कि उसको जो रिवॉर्ड मिला है वो कितना उसका जो इक्विटी है उसको इवेलुएट करे और उसमें कितना फेयरनेस है. अब रेशियो ऑफ इंडिविजुअल जॉब इनपुट टू जॉब रिपोर्ट. अब इक्विटी क्या है कि तुम जितना दे रहे हो उस जॉब में अपने स्किल से, अपने एफर्ट से, क्या वो जॉब तुम्हें उतना रिवॉर्ड कर रहा है उसके पे या प्रमोशन से, इसी को इक्विटी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू मैकक्लेलन, टाइप्स ऑफ बेसिक मोटिवेशन नीड्स आर नीड फॉर पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट. कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम हाई नीड फॉर पावर. कोलैबोरेटिव बिहेवियर रिजल्ट होता है हाई नीड फॉर एफिलिएशन. पावर के लिए तुम्हारा बिहेवियर कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और एफिलिएशन के लिए एक कोलैबोरेटिव मिल के काम करने वाला बिहेवियर होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव बिहेवियर दोनों हैं तो फॉर हाई नीड ऑफ अचीवमेंट के लिए. और थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, तो इसको किसने दिया था, मैकग्रेगर ने. अब है वर्क मस्ट बी गोडेड और गाइडेड इनटू बीइंग प्रोडक्टिव इज़ द अजम्पशन. तो थ्योरी एक्स है, मतलब यहाँ पे वर्क को गाइडेड होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए. और थ्योरी एक्स इज कैरेक्टराइज बाय पेसिमिस्टिक, स्टैटिक और रिजिड. ठीक है. पेसिमिस्टिक हमें पता ही है, जिसमें मतलब कि हर चीज़ में कि ना. स्टैटिक एक जैसा, और रिजिड जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल ना हो और अडिग हो. वर्कर enjoy autonomy and are willing to accept responsibility in an assumption of theory y. थ्योरी एक्स मतलब समझो जैसा सेफ है वैसा ही कट्टम कुट्टी चल रहा है उधर, लेकिन यहाँ थ्योरी वाई जो है ना, वो सोचो कि यहाँ पे ऑटोनॉमी है, यहाँ पे लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ ये मेरी गलती है, आई कुड डू बेटर, समझ रहे हो. और यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, डायनेमिक, मतलब बहुत सारा डायनेमिक है, बहुत सारे एंगल्स है, और फ्लेक्सिबल. ठीक है. अब थिंग्स टू रिमेंबर. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव गिवन बाय पीटर ड्रकर. और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या है डेफिनेशन, कि एक कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स की एक्टिविटी इन सिस्टमैटिक मैनर एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड इफेक्टिव और इफिशिएंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. तो एक कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट होता है जो इंटीग्रेट करता है की एक्टिविटी को सिस्टमैटिक मैटर और डायरेक्टेड होता है इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट अचीवमेंट के लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में. और है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर सिस्टमैटिक एनालिसिस दैट फैसिलिटेट्स मैचिंग ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी विथ इंटरनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. टॉस मैट्रिक्स. द पैनल ऑफ एक्सपर्ट इनसाइड आउटसाइड मेक फोरकास्ट, आंसर आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फ्यूचर एस्टिमेटेड. तो डेल्फी टेक्निक. ठीक है. डेल्फी टेक्निक डेवलप हुआ था ओलाफ हेल्मर एट रैंड कॉर्प. अब मैनेजर टेंड टू प्रमोट टू लेवल ऑफ देयर इनकम्पिटेंस, पीटर प्रिंसिपल. और ग्राफिक मॉडल ऑफ अवेयरनेस इन इंटरपर्सनल रिलेशन इज जोहरी विंडो. जोहरी विंडो किसने प्रपोज किया था, जोसेफ लफ एंड हैरिंगटन इनग्राम ने. नोन बाय मी एंड अदर ऑल्सो ओपन सेल्फ अरेना. नोन बाय मी एंड ओनली
and not other to hidden self, known to me and other also to unknown self, or known to other but not by me to blind self. Managerial greed was developed by Robert Blake and Jane Morton. तो मैनेजरियल ग्रीड का 2 डायमेंशन है, कंसर्न फॉर द पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. कंसर्न फॉर पीपल में क्या आता है कि डिग्री ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड गोल अचीवमेंट, मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ एस्टिमेट ऑफ वर्कर, प्रोविजन ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशंस. कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इंक्लूड करता है क्वालिटी ऑफ पॉलिसी डिसीजन, प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस, क्रिएटिवनेस ऑफ रिसर्च, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वर्क एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. ठीक है, और यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, एंटरप्रेन्योर. वर्ड एंटरप्रेन्योर कहाँ से डिराइव हुआ था? फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू डू समथिंग. वर्ड फर्स्ट यूज़ कहाँ हुआ था एंटरप्रेन्योर? तो रिचर्ड कैंटिलोन के द्वारा 1755 में. अ पर्सन वो बाय फैक्टर सर्विस एंड सर्टेन प्राइस विथ अ व्यू टू सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट अनसर्टेन प्राइस. तो इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अ डेलिबरेट एंड कंटिन्यूस फिनोमेना, तो जो कि एक्टिवली प्रमोट हो रहा है बाय एस्कॉर्ट सर्विस ऑफ चेंज एजेंट, जो प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमिक लीडरशिप. ठीक है, और चेंज एजेंट को एंटरप्रेन्योर कहते हैं. इस डेफिनेशन को दिया है स्कम्पिटर ने. और एंटरप्रेन्योर जो होता है सोशल पैरासाइट है, ये मार्क्स ने कहा था. और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, टास्क ओरिएंटेड, रिस्क बियरर, लीडरशिप, ओरिजिनलिटी एंड फ्यूचर ओरिएंटेड. अब एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है और एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर कर रहा है. और एंटरप्राइज उसका बिजनेस यूनिट को कहते हैं. अब एंटरप्राइज क्या होता है? एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे डिसीजन कंसर्निंग होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड टेकन बाय एंटरप्रेन्योर. गैप के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो ये सारे डिसीजन लेगा. अब है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर. तो इनोवेटर होता है एंटरप्रेन्योर, और मैनेजर क्या होता है? मैनेज करता है बिजनेस को ऑन एस्टैब्लिश रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर. एंटरप्रेन्योर मॉडरेट रिस्क टेकर होता है. हमेशा ये क्वेश्चन आएगा कि मॉडरेट रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर है, तो यस ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, उतना ही रिस्क लेता है. कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं ना, वो लेता है. और मैनेजर क्या होता है? डज नॉट टेक रिस्क. और एंटरप्रेन्योर नॉट गाइडेड बाय मोटिव ऑफ और मैनेजर क्या होता है? इंटरेस्टेड इन सैलरी. तो मैनेजर को क्या होता है? भाई सैलरी दे दो. लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या होता है कि प्रॉफिट नॉट गाइडेड. और एंटरप्रेन्योर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, लेकिन मैनेजर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है अपॉन हिज एम्प्लॉयर. अब क्लासिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर का, तो डेनहॉफ क्लासिफिकेशन. तो एंटरप्रेन्योर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्मेल ऑफ इनोवेटिवनेस एंड सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट एंड क्रिएटिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन. तो इसको कहते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. अब एंटरप्रेन्योर जो इंस्टेड ऑफ इनोवेट नहीं करता है, वो जस्ट इमिटेट करता है टेक्नोलॉजी को, मेथड को जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं. तो अडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होता है. इसको कहते हैं एजेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंटरप्रेन्योर दैट आर वेरी मच स्केप्टिकल इन देयर अप्रोच एंड अडॉप्टिंग एन इनोवेशन, न्यू टेक्निक इन देयर फेबियन एंटरप्रेन्योर. तो ये ना बड़े स्केप्टिकल होते हैं, मतलब कि करूँ ना करूँ, मतलब क्लैरिटी नहीं होती इनमें. और एंटरप्रेन्योर जो कंजर्वेटिव होते हैं और ऑर्थोडॉक्स होते हैं इन आउटलुक इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर. मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि ये स्केप्टिकल है, इनमें क्लैरिटी बिल्कुल है, और ये कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स है. अदर क्लासिफिकेशन, एंटरप्रेन्योर वुड प्रेफर टू सेट अप देयर बिजनेस इंडिविजुअली टू सोलो ऑपरेटर. अब कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द डेली रूटीन ऑफ बिजनेस कंसर्न, तो उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं. एंटरप्रेन्योर प्राइमरी इन्वॉल्व होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी टू इन्वेंटर्स. एंटरप्रेन्योर वुड टेक चैलेंज टू इस्टेब्लिश बिजनेस वेंचर एज मार्क ऑफ अचीवमेंट टू चैलेंजर्स. और एंटरप्रेन्योर जो एक्सप्लोर करता है opportunity to purchase the existing unit which may cease or are in running condition, तो buyer. Entrepreneur who believe that business is the part and parcel of their lifetime, तो lifetimers. Entrepreneur who do not possess any family business background beforehand, first generation entrepreneur. Who are traditional and stereotype in their approach, classical entrepreneur. Who believe in their own performance while understanding business activity, pure entrepreneur.
और एंटरप्रेन्योर वो इंड्यूस्ड बाय प्रमोशनल एजेंसी टू सेट अप एंटरप्राइज विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, तो इंड्यूस्ड है एंटरप्रेन्योर। वो प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग नीड ऑफ टाइम एंड अडॉप्ट द चेंज वेरी क्विकली। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर would take active interest in establishing new enterprise but never stay in that business for a long time. Professional entrepreneur or type of entrepreneur, individual would take the responsibility of creating innovation of any kind from within the organization. Entrepreneur और individual जो need करता है different mindset about establishing and operating a company to entrepreneur. Entrepreneur leave the venture when it reaches the final stage of venture creation and looks for new opportunity to create another one. मोबाइल एंटरप्रेन्योर सैम पिट्रोडा जो रिवोल्यूशनाइज किया था टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया, मोबाइल एंटरप्रेन्योर था। एंटरप्रेन्योर वो कंटिन्यू इन सेम वेंचर बाय अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द वेंचर रादर दैन कंटिन्यू इन इनोवेशन एंड क्रिएटिव ग्रोथ, तो उसको कहते हैं मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो फाउंडर है ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश में, उसको मैनेजरियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर गोज ऑन क्रिएटिंग अ चेन ऑफ न्यू वेंचर वन आफ्टर अनदर एंड बिल्ड अ सॉर्ट ऑफ एम्पायर, तो एम्पायर बिल्डर कहते हैं। जी.डी. बिरला, जी.एन. टाटा, वर्गीस कुरियन जो एम्पायर बिल्डर हैं। अब थ्योरी क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का? सोशियोलॉजिकल थ्योरी, तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलीजन बिलीफ तो वेबर, थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सप्लाई कॉकरन, theory of social change Hagen, theory of group level pattern Young. A central feature of Weberian theory, Protestant ethics and spirit of capitalism. Theory of entrepreneurial supply emphasis over cultural value, role expectation or social sanction. Hagen creative personality is mixture of sculptor innovation and McClinton's high need for achievement. अब है इकोनॉमिक थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ इनोवेशन स्कम्प्टर, एक्स एफिशिएंसी थ्योरी लेमस्टेन और थ्योरी ऑफ अचीवमेंट डेविड मैकक्लेंड, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नाइट एंड थ्योरी ऑफ मार्केटिंग हायक। कल्चरल थ्योरी तो हॉसलेट थ्योरी और स्टॉक थ्योरी। मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप तो कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जॉन जे खाओ और इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अब्दुल अजीज़ मोहम्मद। और conceptual model of entrepreneurship is also known as eco analysis framework. Eco stand for entrepreneurship, creativity, organization. Conceptual model of entrepreneurship is the interrelation of person, task, organization, context. EMT lab associated with entrepreneurship development. Entrepreneurship development cycle include करता है stimulatory, support and sustaining phases. Institute promoting entrepreneurship to National Science and Technology Entrepreneurship Development Board NSTEDB 1982. Entrepreneurship Development Institution of India 1993. Wadhwani Center for Entrepreneurship Development Mararka Foundation 1993 और मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट 1986 और अदर स्पेशलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया नेशनल लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट न्यू दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो था अहमदाबाद एपिक्स नेशनल लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CIDO सेंट्रल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन NSIC KVIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन स्टेट लेवल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। सो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और बुक भी ख़त्म होता है। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने मोस्टली बुक्स में जो है रीडिंग ही करी है कि जब कोई भी बुक खोले मेरा वीडियो एक बारी सुनते सुनते जल्दी जल्दी बुक को टिक कर ले लर्न कर ले, क्योंकि एक होता है ना कि वही चीज़ देख रहे हो वही चीज़ सुन रहे हो और वही चीज़ को तुम एक टच के साथ तुम पढ़ रहे हो तो लर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। यहाँ कोई भी टीचिंग का पर्पस नहीं था, ये प्रॉपर प्योरली रिवीजन का पर्पस था इस सीरीज़ के साथ। एंड थैंक यू सो मच।